Hi guys, before starting this video, I just want to let you know that if you are preparing for CLAT, ALET or any other competitive exam for that matter, I have gone through that. I give CLAT and ALET in 2024 alongside my 11th and 12th, and I did not get a rank that I wanted in CLAT. I just wanted NLS because I worked my ass off for 2 years, and when the result was all India rank 1447, which I was not expecting at all, because all my friends were like toppers. So if you see that year's toppers, NLS, Nalsar, we all were preparing together, and I was extremely heartbroken. 10th December was when my results for CLAT came. 13th December was when my results for ALET came, when I secured an All India rank of 5, and which was more of a feeling of relaxation for me, that finally I don't have to take a drop, or finally I would not have to go to a private college. I can go to an NLU. The 3 days in between were horrible for me, and seeing the protest that's been happening in our country for the last few days, and listening to listening to families who've lost their children, students, in because of the whole NEET fiasco, I am just heartbroken and I want to talk to you. I would not sugarcoat things. I genuinely want to talk to you. I know what clearing this exam means, but I also know what it does not mean, and we are going to talk about it today. So let's get started. Okay. So when I was preparing for these exams, I remember मेरी whole life was around these exams. मतलब it was जस्ट दीज एग्ज़ाम्स. अगर मैं डिनर कर रही हूँ तो मेरे लैपटॉप पे कोई टीवी शो या कोई मूवी नहीं होती थी. इट वाज अ टॉपर्स इंटरव्यू दैट वाज गोइंग ऑन, या मोटिवेशन वीडियो या स्ट्रैटेजी वीडियो. एंड तुम्हें पता है ना, फियर कितना ज़्यादा सेल होता है. मतलब ऑल दीज कोचिंग्स एंड एवरीथिंग, दे मेक थंबनेल्स लाइक, I don't know, AIR 1 in 3 months, AIR 1 in 6 months, because they just want views. But as someone who's gone through that, I know what it feels like. You want certainty somehow कि यार बस मेरा हो जाए, बस आई विल गिव माई एवरीथिंग, बस मेरा हो जाए. मेरे क्यों मॉक स्कोर में 40 मार्क्स आए, मैं तो सब कुछ कर रही हूँ ना, फिर मेरा क्यों नहीं हो रहा. मतलब तुम बस सोचते हो कि कैसे भी बस मेरा ये एग्ज़ाम हो जाए. तुम्हारी लाइफ में और 4 चीज़ें चल रही हो, तुम सोचते भी नहीं हो. मतलब I gained 12 kgs while working for these examinations, because physical activity, मतलब मैंने बहुत लेट योगा मेडिटेशन ये सब शुरू की because it was a necessity. But इस सब के बाद भी, because it's just sitting for whole day, sitting there and studying. So this is what you do for the whole day. You just, और इस सब के बाद तुम सोचते हो कि यार अगर मैं 1 साल, 1.5 साल, 2 साल इतनी मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो एटलीस्ट मेरा रिज़ल्ट तो ऐसा है जो सेटिस्फैक्ट्री हो. और ऐसा कैसे हो जाता है कि कुछ लोगों का 6 महीने में हो जाता है. मेरे को तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है. मतलब बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे माइंड में चल रही होती है, और तुम्हारा सब कुछ उस एग्ज़ाम पे कंटिजेंट हो जाता है कि तुम, मतलब फॉर एग्जांपल अगर तुम NLU दिल्ली के भी ब्लॉग्स देख रहे हो मेरे चैनल पे, तो इट इज़ फॉर यू टू मोटिवेट योर सेल्फ कि यार एक दिन मैं भी वहाँ पर होऊंगा और मैं ऐसी लाइफ जी रही होंगी और इतने मज़े आ रहे होंगे एंड एवरीथिंग. वेल, yes, clearing these exams give you opportunities. Clearing these exams give you confidence to a certain extent. It makes you feel like those 2 years were worth it, but it does not give you happiness or success, and I'll tell you why. कॉलेज में आने के बाद ना, सेम चीज़ जब मैंने मूटिंग की थी तब मुझे रियलाइज़ हुई मेरी पूरी लाइफ वो मूड बन चुका था. मैं सुबह रोज़ 9 बजे सो रही थी, 12 बजे हम फिर से उठ रहे थे 3 घंटे बाद, और हम 15 घंटे 16 घंटे उस मूड की प्रिपरेशन कर रहे थे, एंड वी डिड नॉट क्वालिफाई. एंड आई थिंक ये मेरी लाइफ में पहली चीज़ थी जिसमें मैंने लाइक 15-20 दिन मैंने इतनी मेहनत की थी. और ये 15-20 दिन तो वो है जो हमने साथ में बैठ के कॉलेज में, बिकॉज कॉलेज खुल गए थे तब ये मेहनत की थी. अदरवाइज़ 4-5 महीने से हम इस मूड की मेहनत, मतलब इस मूड के पीछे लगे हुए थे कि यार करना है क्लियर, मतलब ये मूड तो निकालना ही है, हमें ओरल्स में जाना है, हमें ये करना है, एंड दिस इज़ अ ग्रैंड स्लैम मूड, सो द कॉम्पिटिशन इज़ इनसेन. एंड वी डिड नॉट क्वालिफाई, एंड it took me a whole semester to move on from that.
I talked to so many seniors in my college who've done these great moods, who've won international moods, who told me how mooting gives you something, but it does not give you what you think it does. And same, I want to tell you that clearing CLAT and ALET does give you some things, but it does not give you what you think it will. मुझे भी ऐसा लगता था कि एक बार ये हो गया उसके बाद सब सेट, ऐसा नहीं होता है. If anything, you need to be stronger for the path ahead, and this is what life really is. You know, you cannot give an exam the oh my god, how can we give one exam the authority to decide that what my future will look like? I am giving that exam मतलब मैंने खुद ने चूज़ किया वो एग्ज़ाम देना, और अगर नहीं हुआ तो ठीक है यार, मैंने अपना बेस्ट दिया था. और मुझे लगता है जब तुम अपना बेस्ट दे देते हो ना, जब तुम सब कुछ देते हो, तो यार दो तरीके है कि तुम उस चीज़ को कैसे व्यू करते हो. पहला कि मैंने सब कुछ दे दिया, मेरा नहीं हो पाया, मैं काम का ही नहीं हूँ, ये सब. दूसरा, इफ़ आई गेव माई ऑल टू समथिंग, मैंने अपनी साइड से जो था वो कर लिया, उसके बाद वो एग्ज़ाम नहीं निकल पाया, तो शायद वो मेरे लिए नहीं है. एंड दिस इज़ हाउ यू वुड नो इफ़ यू नेवर try something. How would you know if something is for you or something is not? And in that moment, that sucks, that feels horrible, because मुझे भी अगर कोई बोलता कि this mood is not for you because you were not able to qualify this, I would have gotten angry and I would have defended myself for hours. But when I look at it now, the experience is what matters, and I'm not saying it for the sake. मुझे बहुत मज़े आए. This was a space law mood. मुझे लगता है space law कितना interesting है. I know so much about space law that other people don't. I know how responsibility and liability differs, what Article 6 is, what Article 9 is, what Outer Space Treaty is. And similarly, even if you do not clear this exam, you would know so much that other people don't. You would have developed skills to reach somewhere else. एंड यार मतलब पता है, मुझे अंदर से बहुत बुरा लगता है जब somebody thinks they are not worthy of exams and of life if they're not able to clear one exam. And I know बहुत सारे घर में बहुत सारी बहुत ज़्यादा प्रेशर भी होता है. मतलब मेरे घर में तो कोई प्रेशर भी नहीं था, फिर भी मुझे इतना हॉरिबल फील हो रहा था. बहुत सारी जगह तो पेरेंटल प्रेशर होता है, फैमिली प्रेशर होता है, फाइनेंशियली चीज़ें अच्छी नहीं होती, बहुत कुछ होता है यार. और पता है, मुझे तो लगता है बहुत बड़ा रोल इन कोचिंग्स का भी है. विल टेक लैक्स फ्रॉम यू एंड देन बस उनको टॉपर्स चाहिए ताकि वो नेक्स्ट ईयर फिर से ये चीज़ कर पाए लोगों के साथ. वॉट अबाउट द पीपल हु डू नॉट क्लियर दिस एग्ज़ाम? इफ़ 100% पीपल गिव दिस एग्ज़ाम, 2%, 1% क्लियर करते, बाकी 98% का क्या? आर दे नॉट वर्दी? जस्ट टेल मी कि अगर 100 लोग एक पेपर दे रहे हैं और 2 लोगों का क्लियर हो गया, तो बाकी 98 लोग क्या करें? क्या वो वर्दी नहीं है किसी चीज़ के? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. तुम्हें पता है, मेरे को यार मेरे भी ना पास्ट में से बहुत सारे पॉइंट्स आए हैं जहाँ पे मुझे लगा आई एम अ फेलियर, बट एवरी टाइम द कम बैक इज़ सो मच स्ट्रोंगर देन द सेट बैक. और आई थिंक एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद लोग तुम्हें डिफरेंटली ट्रीट करते हैं. आई हैव सीन दैट. जब मेरा क्लैट नहीं हुआ था और मेरी कोचिंग में बाकी लोगों का हो गया था, देर वर लाइक 2 people probably फ्रॉम माई कोचिंग जो मुझे कॉन्टैक्ट करके पूछ रहे थे कि मेरी हाउ एम आई फीलिंग एंड एवरीथिंग लाइक दैट. बाकी लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था. जैसे ही मेरा क्लैट हुआ, आई हैड मैसेजेस फ्रॉम टीचर्स दैट दे ऑलवेज बिलीव्ड इन मी. So society is like this, and even if you don't clear the exam, even if कुछ चीज़ें इधर उधर हो जाती है, तो भी यार मतलब सोसाइटी तो ऐसी ही है. तुम्हें पता है, तुम एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे, उसके बाद लोग बोलेंगे ओ या क्लैट एलेटी तो ईजी होता है. मतलब पीपल विल से वट एवर द हेल दे हैव टू, एंड लेट देम, लाइक जेन्युइनली जस्ट लेट देम. इट इज़ सो हॉरिबल दैट पीपल हेट अपॉन ईच अदर for especially these things. They've not gone through that. They don't know how much energy it takes. They don't know how much mental toll it is. And उसके बाद भी if they have the, I don't know, I just feel so horrible even thinking about these people जो जाकर तुम्हारे पेरेंट्स को या ऐसे रिलेटिव्स जो फालतू में दूसरों के लिए ये फालतू चीज़ें करते हैं कि यार तुम्हें पता है मैं किस मेंटल प्रेशर से, मैं किस चीज़ के थ्रू गई हूँ, और उसके बाद
तुम आकर ये चीज़ें बोल रहे हो, लाइक स्टे अवे. If people are not helping you feel positive about yourself, cut them off. As simple as that. Even if you live in the same household, you can maintain boundaries. You do not owe all of this to someone when you are yourself going through this phase of life where you have to give your whole to an examination. Or honestly, I know what I'm about to speak is something you'd not want to hear, but even if you give your 100%, there is no guarantee that you will clear this exam. यार, मुझे नहीं लगता कि मैंने क्लैट में भी कोई कमी छोड़ी थी, और मुझे नहीं पता कि क्यों मेरी वो रैंक आई थी. और फॉर्चुनेटली आई वॉज लकी इनफ कि मेरा ए ठीक हो गया. तुम्हें पता है, जब हम कॉलेज आते हैं ना, हमारी पहली दूसरी क्लास में हमें टीचर्स यही बोलते हैं कि इट इज़ लाइक अ लकी ड्रॉ जिसमें तुम्हारा नाम आ गया और इसीलिए तुम इस कॉलेज में आए, बिकॉज लक मैटर्स. एंड whether you call it luck, fate or external circumstances, some things are out of your control. It is out of your control. मतलब तुम कितनी भी मेहनत कर लो, कुछ चीज़ें नहीं होती है तुम्हारे कंट्रोल में. एंड as someone who wants to enjoy my life, as someone who wants to make the best out of whatever seconds, minutes I have on this planet, I like to believe it happens for the best. It might be a lie, but I like to believe that. And that's because I want to remain happy. That's because I want to feel nice about my life. तो अगर कुछ नहीं होता तो मुझे लगता है कि ठीक है, मेरा मतलब वही कि मैं कल तक का सोचती हूँ, बट मेरे लिए यूनिवर्स, मेरे लिए भगवान जी आगे तक का सोचते हैं, और इसीलिए शायद वो नहीं हुआ. मैं बहुत खुश हूँ, पता है, मेरा क्लैट नहीं हुआ था, बिकॉज व्हेन आई नाउ नो कि NLU दिल्ली में वो एनवायरनमेंट कैसा है, NLS में कैसा है, मुझे पता है मेरे लिए NLU दिल्ली का एनवायरनमेंट इज़ बेटर. और मैं A-लेट वाली रैंक को या उस चीज़ को इतना अप्रिशिएट सिर्फ इसलिए कर पाई बिकॉज मुझे पता है कि अगर कुछ नहीं मिलता तो कैसा फील होता है. बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो मैं तभी, लाइक यू ओनली नो हाउ गुड डेज फील व्हेन यू गो थ्रू द बैड डेज. एंड नन ऑफ इट इज़ टू से कि तुम्हारा हार्ड वर्क वेस्ट जाएगा या यू डिज़र्व इफ़ यू do not clear an examination. All I'm saying is this exam does not hold the power over you. तुम अपना सब कुछ भी दे दोगे तो कुछ चीज़ें तुम्हारे कंट्रोल के बाहर रहती ही है. एंड दिस इज़ हाउ इट वर्क्स. तुम्हें क्या लगता है यार, ये मतलब जिन लोगों ने नीट की तैयारी की थी, लोग 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल से तैयारी कर रहे थे, और 1 मिनट में पेपर लीक हो गया और फिर नेक्स्ट मिनट यू गेट कि तुम्हारा पेपर फिर से होने वाला. आई कैन नॉट इमेजिन अगर मेरा क्लैट A-लेट के साथ ऐसा हुआ होता, तो क्या उन लोगों की, मतलब क्या उन लोगों ने मेहनत नहीं की थी, या क्या उन लोगों का ने अपना 100% नहीं दिया था. बट एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस, सिस्टम ऐसा है. सो डू नॉट लेट दिस सिस्टम विच इज़ फ्लॉड इन इट सेल्फ डिफाइन यू. दैट्स हॉरेबल. यू आर अ ह्यूमन लिविंग ऑन दिस planet and you get, like, you deserve a beautiful life for yourself. And you have to make one. If not for this exam, do something else in life. बस लास्ट में ये होता है कि तुम अपना बेस्ट दो. एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस तुम्हारे हाथ में नहीं है, राइट. तुम्हें तो एटलीस्ट सेटिस्फेक्शन होगी कि यार मैंने जब इस चीज़ को ट्राई दिया था ना, तो मैंने अपना बेस्ट दिया था. मैं जैसे अब यूट्यूब चैनल कर रही हूँ, मेरे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है, बट मुझे ये चीज़ करने में मज़ा आता है. एंड आई रेड दिस समवेयर दैट यू कैन नॉट डिफीट समवन हु इज़ हैविंग फन इन द प्रोसेस. आई लव व्हेन आई रीड कॉमेंट्स लाइक कि आपकी वीडियो से मेरी एंग्जाइटी कम होती है, या आपकी वीडियोस मुझे बहुत इंस्पायर करती है. I genuinely get emotional because how fortunate I am to be able to reach to you guys and help some of you. I want to thank you guys. मतलब it's beautiful for me. The reason I'm recording this video is I want कि अगर इस वीडियो से 1% बच्चों को भी हेल्प मिलती है ना, कि यार नहीं, सही बात है, मतलब एग्ज़ाम का मैं 100% दूँ, बट एग्ज़ाम को मैं वो अथॉरिटी नहीं दूंगी कि वो मेरे ऊपर ओवर पार करे कि मैं वर्दी हूँ, मैं सेल्फ रिस्पेक्ट के लायक हूँ, मैं सेल्फ लव के लायक हूँ, मैं इस लाइफ के लायक हूँ. नहीं, इट इज़ एन एग्ज़ाम एट द एंड ऑफ द डे मेड बाय अ सिस्टम which is on multiple levels flawed. एंड बहुत सारी चीज़ें हैं यार. मैं GK के 100 टॉपिक पढ़ के गई, 5 टॉपिक उसी में से आ गए या कहीं और से आ गए, मेरे हाथ में थोड़ी है. वॉट आई कैन डू इज़ गिव माई बेस्ट.
बी कंसिस्टेंट एंड गिव माई बेस्ट. मैं जितना कर पा रही हूँ मैं उतना करूँगी, ताकि इवन इफ़ मेरा एग्ज़ाम ना निकले तो मुझे सेटिस्फेक्शन होगी, चलो कोई बात नहीं, मैंने अपना बेस्ट दिया था, लेट्स ट्राई समथिंग एल्स. यू आर 18, 19, 20, 21, 16, 17, यही तो एज ग्रुप है ना तुम्हारा एग्ज़ाम देने के टाइम पे. डू यू थिंक योर लाइफ विल एंड इफ़ यू डोंट क्लियर दिस एग्ज़ाम? नो यार, मेरी लाइफ में जो सबसे इंस्पायरिंग लोग रहे ना, दे आर BA पास, 12th पास, जो आज जिनके आज इतने बड़े बड़े बिजनेस है, जो इतने स्ट्रीट स्मार्ट है. एंड डू यू थिंक अगर ये लोग ऐसे सोच लेते कि यार मेरा ये क्लियर एग्ज़ाम नहीं हो पाया, या इस टीचर ने मुझे बोल दिया था कि यू आर अ फेलियर, दे टेक इट एज अ मोटिवेशन एंड देन प्रूव द अदर पर्सन रॉन्ग. मेरा सुपर क्लब बैच नहीं हो पाया था, जो मेरी कोचिंग थी उसमें सुपर लाइक 30-40 स्टूडेंट्स का बैच मिलता था, और मेरे सारे फ्रेंड्स का हो गया था अगैन, मेरा नहीं हुआ था. आई डिसाइडेड आई विल प्रूव देम रॉन्ग. मैंने और ज़्यादा मेहनत की, एंड प्रॉबली दैट इज़ वाई आई एम हियर टुडे. एंड दैट इज़ वॉट आई वॉन्ट टू टेल यू गाइज, कि अगर मॉक्स में कम मार्क्स आ रहे हैं, कुछ और आ रहे हैं, तो उसको रात दिन उससे डीमोटिवेट होने की जगह टेक इट एज अ लेसन एंड वर्क हार्ड एंड नो दैट इवन इफ यू गिव योर 100% देयर इज़ अ चांस दैट इट विल नॉट, you'll not qualify these exams. And I know it sucks to hear that, क्योंकि क्यों मैं ऐसी वीडियो देखूँ जिसमें मुझे पता चल रहा है कि यार मेरा नहीं हो सकता, बिकॉज आई वॉन्ट टू टॉक ट्रूथ टू यू गाइज. सर्टेनिटी, फियर, ये सब चीज़ें सेल होती है, बट द रियलिटी इज़ दिस अनसर्टेनिटी. द रियलिटी इज़ दैट हो सकता है कि नहीं हो कल को क्लियर, विच इज़ फाइन, बिकॉज यू आर मेंट फॉर सो मच मोर. एक एग्ज़ाम ही है यार, इट इज़ जेन्युइनली जस्ट एन एग्ज़ाम. तुम अपने सिस्टर या अपने ब्रदर को अपनी पोजीशन पे रख कर देखो, तुम जिसको बहुत प्यार करते हो उसको अपनी पोजीशन पे रख के देखो, कल को उसका कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता था तो क्या तुम ये बोल दोगे शी इज़ अनडिजर्विंग ऑफ एवरीथिंग? No, right? Please start treating yourself with more kindness and more love. This is all what I wanted to talk about in today's video. Guys, trust me, सिर्फ क्लैट या एलेट हो जाने से ना सब कुछ हो जाएगा, और इनके ना होने से ऐसा नहीं है कुछ नहीं होगा. I am sitting here now. I will be a third year student in National Law University, Delhi. I'm also an Aditya Birla Scholar. It is like a prestige-based scholarship, and it is a very prestigious merit-based scholarship, which is given to like 15 law students across India every year. And मुझे लग रहा था एक बार मेरे को ये स्कॉलरशिप मिल जाए फिर मेरा सब हो जाएगा, फिर मुझे लगता है ये मूड हो जाए फिर ये सब कुछ हो जाएगा, और अब मुझे लगने लग गया कि द फन इज़ इन जेन्युइनली इन द जर्नी. तुम धीरे धीरे ना सीख जाते हो. And I think it is much better this side. It is much better thinking that I will be so busy watering my own grass to even see if others is greener. I will be so busy having fun in the process of my life to even compare it to others. It is much better this way. So if you have anything else to say, you can of course drop that down in the comment section. But I really hope this video resonated with you, and I really hope you start treating yourself with more kindness and love. That's it. Bye bye. Take care.